नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब। आप सबका स्वागत है हमारे शब्दों की अजमत में। ये हमारा बहुत स्पेशल एपिसोड है, इस साल का आखिरी एपिसोड। और हमारे साथ आज सभी शायर आए हैं, हमारे जितने आ सकते थे, क्योंकि कोविड के बाद हमारी बॉर्डर्स खुली है और हमारा पूरा शहर खाली हो गया रियली ब्रिस्बेन का। सब लोग या तो अपने रिश्तेदारों से मिलने गए हैं या हॉलीडेज़ पे गए हैं, तो वो लोग यहाँ नहीं हैं पर स्पिरिट में हमारे साथ हैं। तो आज मुझे इस बात की खुशी है कि फिर भी काफ़ी लोग आ सके और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि ये साल का बहुत अच्छा एपिसोड आपके लिए रहे, इस आखिरी जो हमारा है। तो हमारे साथ रमनप्रीत फराज जी आए, हमारे बहुत यंग पोएट हैं, उनका स्वागत है। और फराज जी आई हैं प्यारा सा सूट पहन के। फराज जी आपका भी स्वागत है। और दुर्वा जी बहुत प्यारी लग रही हैं। और इस समय सौम्या जी जिन्होंने ब्लू साड़ी पहनी, हम दोनों ने मैचिंग। और हमारे सोही जी हैं, सरबजीत सोही, हमारी बहुत बड़ी शान है हमारे यहाँ के जो कवियों का जो हमारा पूरा कल्चरल एक वो मेंटेन करते हैं स्टैंडर्ड पंजाबी स्पेशली, और दूसरों को भी काफ़ी इनकरेज करते हैं। सोही जी आपका स्वागत है, आप इस लास्ट एपिसोड में हमारे साथ आ सके, थैंक यू सो मच। एंड ऑफ कोर्स सोहेल जी, हमारी टोपी वाले सोहेल जी, हमारे स्पेशल सोहेल जी, सो आप आए, थैंक यू सो मच एंड स्वागत है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वाला हमारा एपिसोड बहुत ही अच्छा रहेगा। तो देखिए हमारा ये जो रहा है, थोड़ी सी मैं बात बोलूँगी कि ये साल आपका कैसा रहा। 2022 को हम अलविदा कहेंगे। ये साल आपका ऐसा रहा कि बस निकल गया और पता ही नहीं चला, या फिर ऐसा रहा कि तुम्हारे बस में अगर हो तो भूल जाओ मुझे, तुम्हारे बस में अगर हो तो भूल जाओ मुझे, तुम्हें बुलाने में शायद मुझे ज़माने लगे। तो ऐसा वाला आपका रहा, कैसा साल रहा, तो इस बारे में बातचीत करते रहेंगे। सबसे पहले हम रमनप्रीत आपसे स्टार्ट करते हैं, आप क्या सुना रहे हैं हमें? मैं आज आपको 2 शायरी सुनाऊंगा ही। हाँ जी। जो मैंने खुद लिखी है। अच्छा। और एक तो मैंने अभी हाल ही में लिखी है। अरे वाह। वो 2 दिन ही हुए हैं। किसी के हुस्न की तारीफ की है मैंने। अरे वाह। तो कैसे की है? तो आपको प्यार होने लग गया। सो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। जरूर। सो पंजाबी शायरी है कि कोई तेरे तो वध सोहना होऊ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਔਖਾ ਏ, ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਹਣਾ ਹੋਊ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਔਖਾ ਏ, ਤੇਰੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਨਣਾ ਔਖਾ ਏ। ਕਿ ਚਿਹਰੇ ਉਂਝ ਬਥੇਰੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਚਿਹਰੇ ਉਂਝ ਬਥੇਰੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਵਰਗਾ ਫੁੱਲ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਖਿਲਿਆ। ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਉਂਝ ਸੋਹਣੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਕਾਦਰ ਨੇ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਰੂਪ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਉਂਝ ਸੋਹਣੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਕਾਦਰ ਨੇ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਰੂਪ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੇਖੇ, ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੇਖੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਕੱਠੇ ਦੇਖੇ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸਦੇ ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਤਾਰੇ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਪੈਰੀਂ ਝਾਂਜਰ ਹੱਥ 'ਚ ਵੰਗਾਂ, ਪੈਰੀ ਝਾਂਜਰ ਹੱਥ 'ਚ ਵੰਗਾਂ, ਤੇ ਵੰਗਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਲਾਲ ਕੁੜੇ, ਮੱਥੇ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਗਲ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਤੇਰੇ ਕੱਕੇ ਵਾਲ ਕੁੜੇ। ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਹਵਾਵਾਂ ਨੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਹਵਾਵਾਂ ਨੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਡੁੱਬਦਾ ਸੂਰਜ ਖੜ ਗਿਆ ਇੰਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਿਆ। ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਉਂਝ ਸੋਹਣੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਕਾਦਰ ਨੇ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਰੂਪ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਿ ਤੂੰ ਕੱਢ ਸੰਦੂਖੋਂ ਪਾਲੀਆਂ ਨੀ ਆ ਗੋਲ ਫਨਹਿਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀ, ਤੂੰ ਕੱਢ ਸੰਦੂਖੋਂ ਪਾਲੀਆਂ ਨੀ ਆ ਗੋਲ ਫਨਹਿਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀ, ਤੂੰ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਸੂਟ ਪਾਉਂਦੀ ਪਰ ਚੁੰਨੀਆਂ ਲੈਂਦੀ ਕਾਲੀਆਂ ਨੀ। ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਕਿ ਤੇਰੀ ਅੱਖ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਕਿ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਹੀ ਪਛਾਣੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ, ਉਂਝ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਉਂਝ ਸੋਹਣੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਕਦਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਰੂਪ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਰੇ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰੀ ਇਹ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ, ਫ੍ਰੀ ਸੀਗੇ ਤਾਂ। ਕਿ ਫੈਕਟ ਆਫ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਰਦਾ ਜੇ ਕਦਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਦੁਖੀ ਨਾ ਕੋਈ ਜਹਾਨ ਅੰਦਰ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਰਦਾ ਕਦਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਦੁਖੀ ਨਾ ਕੋਈ ਜਹਾਨ ਅੰਦਰ। ਖੰਭ ਲੱਗਦੇ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਪਰਿੰਦੇ ਉੱਡਦੇ ਫੇਰ ਅਸਮਾਨ ਅੰਦਰ। ਕਿ ਲੱਭਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮੌਤ ਵਿੱਚੋਂ, ਲੱਭਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮੌਤ ਵਿੱਚੋਂ,
ਲੋਕ ਖੜੇ ਨੇ ਜੁੱਧ ਕਮਸਾਨ ਅੰਦਰ, ਕੀ ਮੁੱਲ ਪਾਉਣਾ ਭਗਵੇਂ ਚੋਲਿਆਂ ਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਬੈਠਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਅੰਦਰ। ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੀਰਾ ਲੱਭਦਾ ਕੋਲੇ ਦੀ ਖਾਣ ਅੰਦਰ, ਕਿ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕਈ ਦੇਖੇ, ਸੌਦਾ ਵਾਧੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਅੰਦਰ। ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਫਰਸ਼ ਤੋਂ ਅਰਸ਼ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਫਰਸ਼ ਤੋਂ ਅਰਸ਼ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ, ਬੜੀ ਕਲਾ ਏ ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਅੰਦਰ। ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਬਾਈਬਲ ਗੀਤਾ, ਬੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਬਾਈਬਲ ਗੀਤਾ, ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਉਹੀ ਨੇ ਸੇਮ ਕੁਰਾਨ ਅੰਦਰ, ਕਿ ਨੱਥੂ ਵਾਲੀਆ ਲੱਭਦਾ ਰੱਬ ਫਿਰਦਾ, ਜਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਧਿਆਨ ਅੰਦਰ, ਜਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਧਿਆਨ ਅੰਦਰ। ਸਾਰੀ फिर से पढ़े कि पढ़े गुरु ग्रंथ बाइबल गीता, पढ़े गुरु ग्रंथ बाइबल गीता, कि गल्लां ओही ने सेम कुरान अंदर, कि नत्थू वालिया जो मेरा पिंड है पंजाब से, कि नत्थू वालिया लभदा रब फिरदा है, ते जरा मार के देख ध्यान अंदर। धन्यवाद जी, थैंक यू। बहुत बहुत अच्छी शुरुआत करी आपने। वो जो पहले आपने इश्क के ऊपर करी थी, उसके लिए एक शेर मुझे याद आया, तो आपकी आई होप कि आपकी वो चलती रहेगी शायरी। लत तेरी लगी है, लत तेरी लगी है, नशा सरेआम होगा, हर लम्हा मेरे इश्क का अब तेरे नाम होगा। जी हाँ, तो कोविड पे भी बहुत अच्छी आपने बात करी, तो 2 डिफरेंट सब्जेक्ट्स, वेरी नाइस था। थैंक यू सो मच रमन। थैंक यू जी। फरा जी आपके पास आते हैं, और कैसा रहा आपका साल, आपका कोई रिफ्लेक्शन? और बस ये थोड़ा सा ज़रा ये मेरा गम का साल था, मेरी मदर इन लॉ पास अवे हुई, और कुछ प्रॉब्लम्स थोड़े से हमारे फैमिली के थे, लेकिन आफ्टर ऑल गुजर गया। ऊपर नीचे जी बस। तो आज हमारे लिए जी आज मैं नई तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों को पसंद आएगी। अर्ज किया है, क्यों मुझसे गुरेजा हो, मुझे साफ बता दो। वाह। क्यों मुझसे गुरेजा हो, मुझे साफ बता दो, गर जुर्म मोहब्बत है तो फिर इसकी सजा दो। क्या बात है, बहुत अच्छे। अब दर्द की शिद्दत में वो तेजी नहीं बाकी, अब दर्द की शिद्दत में वो तेजी नहीं बाकी, लाओ अब खंजर मुझे एक जख्म नया दो। वाह बहुत अच्छे। रखो न कोई बात भी तुम दिल में छुपा कर, रखो न कोई बात भी तुम दिल में छुपा कर, मैं राह की दीवार हूँ तुम मुझको गिरा दो। वाह क्या बात है, बहुत अच्छे। इस दर्द का मयार भी मोहब्बत है दौलत, इस दर्द का मयार मोहब्बत भी है दौलत, ठुकराओ मगर कुछ मेरी कीमत ही लगा दो। वाह बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तरसो न कभी प्यार को मेरी ये दुआ है, तरसो न कभी प्यार को मेरी ये दुआ है, ऐ काश फकत तुम भी मुझे ये ही दुआ दो। वाह क्या बात है। क्यों मुझसे गुरेजा हो, मुझे साफ बता दो, गर जुर्म मोहब्बत है तो फिर इसकी सजा दो। बहुत अच्छे। एक छोटी सी और अगर इजाजत हो तो। मुस्कुराने की बात करते हो, मुस्कुराने की बात करते हो, किस जमाने की बात करते हो। वाह क्या बात है। रोज झूठी तसल्लियां देकर, रोज झूठी तसल्लियां देकर दिल बढ़ाने की बात करते हो, मुस्कुराने की बात करते हो। झिलमिलाने लगे नजर के चिराग, झिलमिलाने लगे नजर के चिराग, किसके आने की बात करते हो। क्या बात है। मुस्कुराने की बात करते हो। हमको लाके फरेब फरदा में, हमको लाके फरेब फरदा में आजमाने की बात करते हो, किस जमाने की बात करते हो। आके देखो ये रब्त शबनमो गिल, आके देखो ये रब्त शबनमो गिल, क्यों रुलाने की बात क्या करते बात है। हो, मुस्कुराने की बात करते हो। इश्क मुश्क दो नहीं एक है,
इश्क व मुश्क दो नहीं एक है, किस घराने की बात करते हो, वाह, क्या मुस्कुराने की बात करते हो, आंखों में भरकर किरचिया फरहा। ये विभा जी जरा गौर से सुनिएगा। आंखों में भरकर किरचिया फरहा, सो जाने की बात करते वाह, वाह, क्या किस बात है। जमाने की बात मुकर्रर। करते। आंखों में भरकर किरचिया फरहा, सो जाने की बात करते हो, वाह। मुस्कुराने की बात करते हो, किस जमाने की बात करते हो। क्या बात, शुक्रिया। खूबसूरत। शुक्रिया। आपने तो हमारे दिल की बात कर दी। जी बहुत खूबसूरत फरा जी, आपने मतलब हर तरह की तरह हमेशा की तरह मज़ा आ गया। जी हाँ, तो ये शेर आपके लिए जो आपने इश्क विश्क की बात करी। रहे ना कुछ भी मलाल शिद्दत से कीजिए, रहे ना कुछ भी मलाल शिद्दत से कीजिए, सोही जी नफरत भी कीजिए, नफरत भी कीजिए तो ज़रा मोहब्बत से कीजिए। जी हाँ, नहीं फरा जी थैंक यू सो मच। और बहुत अच्छा रहा। देखिए इस साल तो फीफा ने डोमिनेट किया। इवन फीफा और आप बोलेंगे कि शायरी का क्या संबंध है, पर मेरे लिए ज़िंदगी की हर एक छोटी छोटी चीज़ हमारी शायरी को इम्पैक्ट करती है। जैसे कई चीज़ें उसमें इंसानियत की, जो दो चार उदाहरण मैं आपको दूंगी। जब रोनाल्डो समवन लाइक रोनाल्डो, उनकी टीम हार गई और वो रो के लाइक बिकॉज फॉर रोनाल्डो मैसी एंड नेमार उनका आखिरी वर्ल्ड कप है, और वो मतलब मेरा जो बेटा है ही इज़ इनटू फुटबॉल और उसके लिए ये लोग गॉड्स हैं लिटरली। एंड जब वो हार गए तो उनका ड्रीम शैटर हो गया। एंड समवन लाइक हिम ही उनकी जो हार में वो रोते हुए टनल से गए, उस हार में उनने दुनिया के सारे लोगों का दिल जीत लिया। तो उससे ये पता चलता है कि हार और जीत की बात नहीं है, इट्स अबाउट दिस लिटिल मोमेंट्स जो ये पल रहते हैं, जो आपके साथ रह जाते हैं, हमेशा आपको याद रहेंगे। और फिर वो जो सोफियान थे मोरक्को के, पहला अरब नेशन, फर्स्ट अफ्रीकन नेशन, when they won, जब पोर्चुगल के साथ उन्होंने फील्ड पे अपनी माँ के साथ डांस किया, दैट मोमेंट। एंड ऑल्सो जब इवान का बेटा, नेमार रो रहे थे सिसक के, तो उनका बेटा आया और उसने उनको हग दिया। थिंग्स लाइक दैट इट जस्ट आपके साथ हमेशा रहती है और समहाउ आपकी जो शायरी को भी इम्पैक्ट करती है। छोटे छोटे जो इंसानियत के ये जो आपको एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं। तो ये मेरे साल इस बारे में बात होती रहेगी। खैर अब दुर्वा जी के पास आते हैं। और या माइक हम लोग भूल ही गए कि। तो दुर्वा जी आपका साल कैसा रहा? बस थोड़ा उतार चढ़ाव वाला ही, जैसे हर साल होता है। पर आप इंडिया जाने वाली जी, एंड बहुत एक्साइटेड हैं? बहुत ज़्यादा। मैं बस वेट कर रही हूँ। अच्छा जी ने आपकी बहुत अच्छा रही ट्रिप। और आप क्या सुनाएंगी हमें? आज मैं हिंदी में सुना रही हूँ और थोड़ा रूठने मनाने की कोशिश के ऊपर है। जरूर। मैं देख रही हूँ तुमको यूं, मैं देख रही हूँ तुमको यूं, जैसे तुम मेरे दर्पण हो। मैं देख रही हूँ तुमको यूं जैसे तुम मेरे दर्पण हो, और चाह रही हूँ तुमको यूं जैसे संपूर्ण समर्पण हो। वाह। नजदीक ही हूँ पर लगता है, नजदीक ही हूँ पर लगता है, मैं नौका में तुम तट पर हो। वाह। मन मुट्ठी कर क्यों बैठे हो, कुछ ना कहने की हट पर हो। वाह। कुछ कह दोगे तो हल होगा, कुछ कह दोगे तो हल होगा, मन को थोड़ा संबल होगा। नैनों की भाषा समझो तुम, यूं प्रीत से वरना छल होगा। वाह। कितने ही अब मैं जतन करूं, कितने ही अब मैं जतन करूं, मेरे सिर पर वो कांधे हों, निर्मोही होकर भी कैसे इस मोह पाश में बांधे हो। वाह। वाह। ये आखिरी पंक्तियां सुनिएगा। श्रद्धा के बिना मूरत सा देव, श्रद्धा के बिना मूरत सा देव, मंदिर में निरा पाषाण सा है। उस प्राण प्रिय के साथ हूँ मैं, और हृदय मेरा निष्प्राण सा है। वाह। बहुत खूबसूरत आपकी रचना है। तो आज मैं शायरी की प्रस्तुत एक ही प्रस्तुत और कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ जरूर। तो ये क्योंकि मैं इंडिया जा रही हूँ, तो बचपन जहाँ बीता है तो उस घर के ऊपर है। घर याद आता है, हम बड़े हो गए हैं, खुद के पैरों पे खड़े हो गए हैं, चलना जहाँ से सीखा था वो दर याद आता है। आज भी दोस्तों वो घर याद आता है। मासूम सपनों को जहाँ
सिरहाने रख सोया करते थे। मासूम सपनों को जहां सिरहाने रख सोया करते थे, चांदनी रातों में कहानियां पिरोया करते थे। वाह। गर्मियों के मौसम में छत पे फैला वो बिस्तर याद आता है। बहुत अच्छी। आज भी दोस्तों वो घर याद आता है। बेहिसाब किस्से बिखरे हैं जहां, बेहिसाब किस्से बिखरे हैं जहां, लकड़ी के दरवाजे और पत्थर की दीवारों में सिमटा वो बचपन से जवानी का सफर याद आता है। बहुत अच्छी। आज भी दोस्तों वो घर याद आता है। जिंदगी के इस मोड़ पे बरबस यूं ही, जिंदगी के इस मोड़ पे बरबस यूं ही, नए दरवाजों और दरख्तों के बीच अपना वो समंदर पार का शहर याद आता है। आज भी दोस्तों वो घर याद आता है। बहुत ही सबको याद दिला बहुत। दिया है। हाँ, देखिए आपने ऐसा बोला, अब सब इंडिया जाने का हमारा मन हो गया, या पाकिस्तान, या बहुत ही खूबसूरत। और आई होप कि आपका बहुत अच्छा रहे आपका ट्रिप, और आप यादें लेकर आए और हमारे लिए। जी Thank you हाँ, so much. तो जो ये आपने पुरानी बातें करी, हमेशा हम जब अपने घर की तरफ देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती, जैसे आपने छत पे बोला, ऊपर ठंडी चादरें और ये सब जो रहते हैं, जो हमारी रियली बिजी लाइफ में हम मिस करते हैं ना। तो एक्चुअली ये फुर्सत के पलों से मुझे एक शेर ये मैंने लिखा था, और एक्चुअली ये मैं सोहेल जी के लिए, ये मेरा और सोहेल जी का चलता रहता है, हम दोनों को चाय बहुत पसंद है। तो फुर्सत ही महंगी है सोहेल जी, वरना सुकून तो इतना सस्ता है कि चाय की प्याली में मिल जाता है। जी हाँ, तो अब स्वामी जी आपके पास आते हैं। आप तो इंडिया जाके आई, कैसा रहा आपका? जी धन्यवाद विभा जी। इंडिया ट्रिप बहुत अच्छा था। भारत जाके तो परिवार से मिलके जो आनंद मिलता है वो बयां करना मुश्किल है, बट स्टिल वापस तो आना ही था रोजी रोटी के लिए, तो बट जाना हमेशा अच्छा लगता है, उसमें कोई दो बातें नहीं है। जी। तो इस बार आप हमें क्या सुनाएंगी? आज जैसे हर साल दुर्वा जी ने कहा, उतार चढ़ाव से गुजरता है हमारा। पिछला 2022 भी कुछ ऐसा ही गुजरा, तो मैंने संघर्ष के ऊपर एक कविता लिखी है। अच्छा। मैं वो ही सुनाना चाहूंगी, जरूर। लेकिन कविता सुनाने से पहले मुझे एक गीत याद आ रहा है जो इसी जिंदगी के उतार चढ़ाव को दर्शाता है। थोड़ा सा गुनगुनाती हूँ। जरूर। काफी पुराना गीत है, गायक शायद मुकेश थे और मनोज कुमार जी पर फिल्माया गया था। काफी पुराना, हम लोग जब प्राइमरी स्कूल में होते थे तब ऑल इंडिया रेडियो पे सुनते थे। तब की बात है। हो सकता है किसी को याद आए, किसी के लिए नया हो। सुनिएगा। गर्दिश में हो तारे, ना घबराना प्यारे, गर तू हिम्मत ना हारे तो होंगे वारे न्यारे। गर्दिश में हो तारे, ना घबराना प्यारे, मुझको मेरी आशा देती है दिलासा, मुझको मेरी आशा देती है दिलासा। आएंगी बाहर चली जाएंगी खिजा, हो आसमां ये नीला नीला करे है इशारे। गर्दिश में हो तारे, ना घबराना प्यारे, दुनिया है सराय रहने को हम आए, दुनिया है सराय रहने को हम आए। आए हैं तो हंसी खुशी झीले तू यहाँ, ओ सूरमा ये जिंदगी जो कांटों में गुजारे। गर्दिश में हो तारे, ना घबराना प्यारे, बाजुओं में दम है फिर काहे का गम है, बाजुओं में दम है फिर काहे का गम है। अपने इरादे हैं उमंगे हैं जवां, ओ मुश्किलें कहाँ है उन्हें मेरा दिल पुकारे। गर्दिश में हो तारे, ना घबराना प्यारे। बहुत बहुत खूबसूरत। बस धन्यवाद बहुत धन्यवाद। हाँ। अब मैं आती हूँ अपनी स्वरचित कविता पे, जो इसी
इसी भाव को दर्शाती है। जी हाँ। तो जिंदगी की जो कठिन परिस्थितियों में संघर्ष करते लोग हैं, उनको संबोधित करते हुए बहुमूल्य संपत्ति जो वो विकसित करते हैं इस दौरान, उनमें से एक है आत्मबल यानी विल पावर। तो मेरी कविता का शीर्षक है सुख अवश्य आएगा। एक आशावादी दृष्टिकोण से लिखी है कि सदा हिम्मत, हौसला और दृढ़ता बनाए रखें जीवन में, उसी से अद्वितीय संघर्ष दूर होगा। सुनिए। 12 मास से बनता साल, जीवन सबका हो खुशहाल। बलवान समय सदा अग्रसर रहता, अनुभव और सीख संग बहता। त्योहारों से खुशियां बढ़ती, जीवन में अद्भुत रंग भरती। उत्तर भारत में सर्दी से ठिठुरते, तभी उत्तरी ऑस्ट्रेलिया उबलते। कहीं धूप की तपिश उजियाली, तो कहीं बर्फ की चमक निराली। जीवन चक्र भी यूं ही चलता, सुहावनी भोर संग आशीष बरसता। नए साल की नई उमंगे, जीवन में उठती नव तरंगे। नई चेतना, नया उत्साह लाता है मन में नूतन प्रवाह। नव स्फूर्ति, नव हर्षोल्लास, कठिन संघर्षों से दे उबार। नव संकल्प संजोते हुए, सकारात्मक ऊर्जा लाए बहार। संघर्षों की अंधियारी गली को हौसले और हिम्मत से प्रकाशित करना। वक्त का ग्रहण तो सूर्य चंद्रमा भी यथावत झेलते हैं ना। वाह। कहीं फूलों के रास्ते तो कहीं कटीली डगर मिलेगी। तुम अपने दृढ़ संकल्पों से हर कठिनाई ठेलते रहना। आखिर में आशा का आदित्य उदित हो, नव प्रभात में खुशहाली बिखरे। मेहनत से पूरे हों संकल्प, स्वर्णिम किरणें अमन छिड़कें। प्रगति मार्ग पर प्रशस्त हों, शांति, सहयोग और सबलता बढ़ानी है। कर्मठता और सकारात्मक सोच जीवन जीने की पूंजी बनानी है। बहुत खूब, जीवन जीने की पूंजी बनानी है। बहुत खूब, बहुत खूब। धन्यवाद। बिल्कुल चाहिए था हमें, हमारा जैसा साल रहा और आने वाले साल के लिए। बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक और बहुत ही पॉजिटिव मैसेज है। थैंक यू सो मच सौम्या जी। धन्यवाद। थैंक यू। और कुछ सुना रही हैं या और कुछ बोलना है आपको? मैं आभार आखिर दूंगी। में जी जरूर जरूर। तो ये जो आपने दृढ़ता की बात करी, जी हाँ, आपके पास तो उसके लिए एक शेर मैं बोलूँगी ज़रूर। इट्स नॉट वेरी, बहुत ही हल्का फुल्का सा है। जो टूट कर भी मुस्कुरा दे, जो टूट कर भी मुस्कुरा दे, ऐसी बेशरम हूँ मैं सौम्या जी। तो अब हम आते हैं सरबजीत जी आपके पास। सरबजीत, सो ही आप हमें क्या सुना रहे हैं? आपका साल कैसा रहा? आपके क्या? बहुत अच्छा रहा। क्या आपके मेन रिफ्लेक्शंस रहे 2022 के, ऐसा कुछ? बढ़िया था। लास्ट ईयर से और मिलने के मौके मिले इस साल जी, और बहुत सारे महफिल लगी। वो एक गजल के कुछ शेर है, वो कहने चाहता हूँ बस। मनाई सी कवि होके सच्चाई बोल बैठा। मनाई सी कवि होके सच्चाई बोल बैठा हाँ। ਦਿਓ ਹੁਣ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। ਮਨਾਈ ਸੀ ਕਵੀ ਹੋ ਕੇ ਸੱਚਾਈ ਬੋਲ ਬੈਠਾ ਹਾਂ। ਦਿਓ ਹੁਣ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹਾਂ। ਕਰੋ ਦੇਰੀ ਨਾ ਬੋਲਾਂ ਸਾਫ਼ ਗੋਈ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ। ਕਰੋ ਦੇਰੀ ਨਾ ਬੋਲਾਂ ਸਾਫ਼ ਗੋਈ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ। ਕਟੋਰਾ ਵੀ ਪਰੇ ਲੈ ਜੋ ਕਿ ਬੁੱਕਾਂ ਖੋਲ ਬੈਠਾ। ਦਿਓ ਹੁਣ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਮੇਰੀ। बचे ने शब्द ही मेरे नहीं कुछ होर है पल्ले। बचे ने शब्द ही मेरे नहीं कुछ होर है पल्ले। ओ किरण वास्ते नजमा लहू में डोल बैठा। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। ओ किरण वास्ते नजमा लहू में डोल बैठा हाँ। परांगा मैं उडारी अंबरां तो भी परे हुण तां। परांगा
ਮੈਂ ਉਡਾਰੀ ਅੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਵਾ ਦੇ ਬੁੱਲਿਓ ਨੇਰੀ ਚ ਪਰ ਮੈਂ ਤੋਲ ਬੈਠਾ वाह वाह बहुत ही अच्छा बहुत अच्छा जबरदस्त ਪਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਉਡਾਰੀ ਅੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਵਾ ਦੇ ਬੁੱਲਿਓ ਨੇਰੀ ਚ ਪਰ ਮੈਂ ਤੋਲ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਸਵੈ ਗੌਰਵ ਫਕੀਰੀ ਯਾਰ ਤੇ ਯਾਦਾਂ ਪਏ ਬਾਕੀ ਸਵੈ ਗੌਰਵ ਫਕੀਰੀ ਯਾਰ ਤੇ ਯਾਦਾਂ ਪਏ ਬਾਕੀ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਨਾਬਰੀ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਰੋਲ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਦਿਓ ਹੁਣ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਇਸ ਰੂਹ ਦੇ ਪਾਰ ਮੈਂ ਕੰਡੇ हाँ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਇਸ ਰੂਹ ਦੇ ਪਾਰ ਮੈਂ ਕੰਡੇ ਇਹ ਆਣਾ ਸੀ ਗੁਲਾਬਾਂ ਕੋਲ ਦੁਖੜੇ ਫੋਲ ਬੈਠਾ वाह बहुत अच्छे फिर से पढ़ेगा फिर से पढ़ेंगे ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਇਸ ਰੂਹ ਦੇ ਪਾਰ ਮੈਂ ਕੰਡੇ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਇਸ ਰੂਹ ਦੇ ਪਾਰ ਮੈਂ ਕੰਡੇ ਇਹ ਆਣਾ ਸੀ ਗੁਲਾਬਾਂ ਕੋਲ ਦੁਖੜੇ ਫੋਲ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਦਇਆ ਕਰੋ ਕੁਝ ਤਾਂ ਐ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ਕ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰੋ ਐ ਦੋਸਤੋ खुश रखा ਹੁਣ ਖੁਸ਼ਕ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਬਚੇ ਅਥਰੂ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਦਵਾਤੀ ਕੋਲ ਬੈਠਾ बहुत अच्छा बहुत ही खूब ਮਨਾਈ ਸੀ ਕਵੀ ਹੋ ਕੇ ਸਚਾਈ ਬੋਲ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਦਿਓ ਹੁਣ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ बहुत ही अच्छे ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ बहुत खूबसूरत सोही जी। सजा में तुम मिलोगे तो बोलो, सजा में तुम बोलो मिलोगे तो बोलो, मैं हर गुनाह कबूल कर लूं। क्या बात जी नहीं, और क्या सुना रहे हैं आप? और कोई बस एक ही। जी हाँ, थैंक यू सो मच सोही जी। और आपके पास आते हैं सोहेल जी, आपका क्या मूड है? मूड तो सारा साल एक जैसा ही रहता है। आपने शुरू में जिक्र किया कि जितने शायर आ सकते थे आगे, जी तो उसी वक्त मुझे एक शेर याद आया, बड़ी मुश्किल से अभी तक याद रखा है मैंने, अरे कि मैंने वाह। पढ़ना है आखिर में बोलिए इरशाद। कि हमने उसे देखा जितना देखा जा सकता था, फिर भी दो आंखों से कितना देखा जा सकता है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। कुछ शायरी आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। एक ज़ेर तमीर गज़ल से 3 शेर हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। कि उसके पास है मेरी सिखाई हुई मोहब्बत, उसके पास है मेरी सिखाई हुई मोहब्बत, लफ्ज़ लफ्ज़ दिल तक पहुँचाई हुई मोहब्बत, वाह लफ्ज़ लफ्ज़ दिल तक पहुँचाई हुई मोहब्बत। ये आग तो नहीं जो पानियों से बुझ जाए, ये आग तो नहीं जो पानियों से बुझ जाए, ये दिल से दिल में सुलगाई हुई मोहब्बत, ये दिल से दिल में सुलगाई हुई मोहब्बत। और उस जुल्फ़े स्याह दराज की क्या सिफ़त करूँगा मैं, वाह उस जुल्फ़ स्याह दराज की क्या सिफ़त करूँगा मैं। खूब दिखती है लहराई हुई बल खाई हुई मोहब्बत, वाह खूब दिखती है लहराई हुई बल खाई हुई मोहब्बत। और अर्ज किया है कि शाम हसीन हो जाए तुम अगर आओ तो, शाम हसीन हो जाए तुम अगर आओ तो, रोशन ज़मीं हो जाए तुम अगर आओ तो। लोगों से इतनी बातें करते हो, लोगों से इतनी बातें करते हो, ये हुनर हम पर भी आजमाओ तो, ये हुनर हम पर भी आजमाओ तो। आखिर ऐसा भी क्या कह दिया हमने, किस बात से खफा हो बताओ तो, किस बात से खफा हो बताओ तो। हम भी अच्छी बातें कर लेते हैं विभा जी, हम भी अच्छी बातें कर लेते हैं, किसी शाम चाय पे बुलाओ तो। हम भी अच्छी बातें कर लेते हैं हम भी अच्छी बातें कर लेते हैं, किसी शाम चाय पे बुलाओ तो। कुछ जानना है तुम्हारे बारे में, जरा बायां हाथ दिखाओ तो। कुछ जानना है तुम्हारे बारे में, जरा बायां हाथ दिखाओ तो। मानो हम जहर भी खा लेंगे, तुम अपने हाथ से खिलाओ तो। क्या बात है। तुम अपने हाथ से खिलाओ तो। तमाम उम्र लौ बनकर दहकेंगे, तमाम उम्र लौ बनकर दहकेंगे,
अपने हाथों से दिया जलाओ तो, क्या बहुत अच्छे। अपने हाथों से मुकर्रर। तमाम उम्र लौ बनकर दहकेंगे, अपने हाथों से दिया जलाओ तो। चलो मैं आंखें मूंद लेता हूँ, आखिरी शेर है कि चलो मैं आंखें मूंद लेता हूँ, जरा आंखों से हाथ हटाओ तो। अरे वाह, चलो मैं आंखें मूंद लेता हूँ, जरा आंखों से हाथ हटाओ तो। और आपकी इजाज़त के साथ एक आखिरी आपके लिए पेश करूंगा कि ये असल में पिछले दिनों मैं अपनी एक डायरी खोल रहा था तो मुझे अचानक नजर आ गई, मैं उसकी स्क्रीनशॉट ले ली, मैंने कहा ये पढ़ूंगा। अरे वाह। कि सब तरीके आजमा कर देख लिए, अदब और सलीके आजमा कर देख लिए, उनकी ना हाँ में ना बदली, जख्म दिल के दिखाकर देख लिए। बहुत मान हुआ करता था खुद पर, हुनर अपने आजमा कर देख लिए। हजार जतन कर चुके हैं आप अब तक, हजार जतन कर चुके हैं आप अब तक, दिल के पर्दे भी गिरा कर देख लिए, दिल के पर्दे भी गिरा कर देख लिए। और उसे खोने का डर अब भी सरे फहरिस्त है, उसे खोने का डर अब भी सरे फहरिस्त है, 100 वसवसे दिल में बसाकर देख लिए। और आखिरी शेर के आप ही कुछ समझाइए इस दिल को, हम तो बहुत समझा कर देख लिए। अरे वाह, आप ही कुछ समझाइए इस दिल को, हम तो बहुत समझा कर देख लिए। बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह। चलिए, आपने ये आजमाने की बात की, इससे एक शेर ये आपके लिए सोहेल जी। आ सितमगर चल हुनर आजमाए, आ सितमगर चल हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। जी बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। हमेशा की तरह आपने एक समा बांध दिया। थैंक यू सो मच। तो देखिए, हम अपने आखिरी पड़ाव पे पहुंच गए हैं इस प्रोग्राम के। तो मेरी ये गुजारिश है, अगर कोई कुछ कहना चाहता है, हमारा शायर आज स्पेशल किसी की कोई, रमनप्रीत, फराज जी, दुर्वा जी, आप, सोई जी, आप कोई भी कुछ भी बोलना चाहता है। विभा जी, मैं चाहूंगी जरूर जरा आभार देना पूरी इंडोज टीम को, आपको, रशपाल जी, लवी जी, सब जो इसमें इन्वॉल्व हैं। इतने अच्छे शब्दों की अजमत कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं इस साल के। तो एक आभार व्यक्त करते हुए एक कविता लिखी है, बस उसको पढ़ देती हूँ। आज यह घड़ी आई है, कविताओं की छटा छाई है, हम पहुंचे यहाँ 2022 के आखिरी पड़ाव पर, मिलने का लेकर बहाना, सबका जोश देखकर लगे जैसे हो कोई उत्सव सुहाना। हर्ष हुआ अपार, कुछ लिखूं तुरंत ऐसा आया मन में विचार, साल भर आप सबसे मिला इतना सहयोग और प्यार, जी करता है कि अभिव्यक्त करूं ढेर सारा आभार। घर में सभी बड़े भाई बहन, पतिदेव, बच्चे बने प्रेरणा के अद्भुत स्रोत, सदैव सबने अपने व्यक्तित्वों की सुगंध से किया हमें ओतप्रोत। सभी साथियों में अपनी अपनी खूबियां, सभी का है अपना मोल, जो संकट में साथ दे बस वही सबसे अनमोल। और अब मैं आ रही हूँ इस कार्यक्रम के महत्व पे, जो मैं अपने दिल से व्यक्त कर रही हूँ। इस खट्टे मीठे संघर्षपूर्ण जीवन में यह कार्यक्रम एक प्रकाश स्तंभ है। इस खट्टे मीठे संघर्षपूर्ण जीवन में यह कार्यक्रम एक प्रकाश स्तंभ है। कलात्मकता और सकारात्मकता दर्शाता यह कार्यक्रम सौहार्द का प्रतिबिंब है। इंडोज परिवार को अनेकानेक बधाई और ढेरों शुभकामनाएं मैं लेकर आई। श्रेष्ठ रचनाओं के मोतियों को माला में पिरोया, मैत्री, स्नेह और आदर आपने बेशुमार संजोया। आगामी वर्ष में भी चलता रहे यूं ही काव्य का सिलसिला, संस्कृतियों की विभिन्नता और प्रचुरता देख, विभिन्नता यानी डाइवर्सिटी, प्रचुरता रिचनेस, संस्कृतियों की विभिन्नता और प्रचुरता देख बढ़े सहिष्णुता, मिटे फासला। फिर मिलेंगे दोस्तों और साथ ही नई बुलंदियों को छुएंगे। तब तक ख्याल रखिए अपना और सदा हंसते मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद। थैंक यू। बहुत ही अच्छी तरह आपने रैप अप किया। जी हाँ सर जी, आप क्या बोल रहे थे? नहीं, मैं तो
थैंक यू बोल रहे थे, मैं क्या बोल बहुत सकता हूँ। धन्यवाद। जी आप और किसी को कुछ इतना अच्छा बोला है इन्होंने, इसके बाद बोलने की कोई उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं है। बहुत ही माशाल्लाह, हम सब की जो है ना दिल की बातें उन्होंने कह दी है। जी हाँ, तो देखिए बस अब मैं इतना ही कहना चाहूँगी हमारे दर्शकों से कि जो आपका प्यारा सा साथ रहा, शायराना साथ रहा साल भर, आपका दिल से शुक्रिया। और हमारी पूरे इंडोस टीवी टीम की तरफ से, लवी जो हमारे कैमरामैन है, हमारे डायरेक्टर रशपाल जी, सबकी तरफ से आपको शुभकामनाएं और बधाई। आपकी जो न्यू ईयर है वो भी बहुत ही अच्छा रहे, हमारी पूरी हमारी दिल से उम्मीद है। और मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि 2023 में थोड़ा सा वक्त आप अपने लिए निकालें और बहुत ही हैवी मत रखिए, थोड़ा बहुत लाइट मोमेंट्स भी रखिए। जिसमें एक शेर है जो ये जॉन एलिया का मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो उन्होंने ज़िंदगी के बारे में बोला था कि ज़िंदगी एक फ़न है, ज़िंदगी एक फ़न है लम्हों को अपने अंदाज से गंवाने का। तो आप ज़रूर गंवाइए क्या बात है। कुछ ये लम्हे पर अपने अंदाज से, थोड़ी स्टाइल रखिए, थोड़ा सा थोड़ा सा कुछ होना चाहिए कि लगे तो सही कि यार आपने ज़िंदगी जी है, बिकॉज वंस इट गोज़ हमेशा के लिए चली गई, राइट। और हाँ, आपकी चाय की प्यालियाँ भी चलती रही। जाते जाते मैं ज़रूर सोहेल जी आपके लिए एक तुम आप सब, एक तुम एक मैं और 2 कप काफ़ी है इश्क के लिए। तो इस उम्मीद के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद सो मच, आप सब आए। और रमनप्रीत आपका, फरा जी थैंक यू सो मच, एंड दुर्वा जी, सौम्य जी, एंड सोई जी आपका, सोहेल जी आपका, और आप सबका भी। सो आपसे मुलाकात होगी अगले साल, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।